देखिया सी भी 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ की ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, उस तो बाद आप उस देखिए सी भी किस तरह आप पॉइंट है जो रिपीट कर देंगे। हम आप ये देखते हैं 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ आप जेकर 2 पॉइंट दिते अपन। ठीक है, इस तरह अपने को 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ प्लेन अपने को एक ही अपने को एक्स एक्स से ओरिजिन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ y एक्स है, ये z ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੀਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ p ਦਿੱਤਾ ਹੈ x1 y1 z1 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ q ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ x2 y2 z2। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਲਾ तो किस तरह फाइंड करेंगे इस दे बारे में आज आप स्टडी करेंगे। क्लियर, बहुत इजी है आज वाला अपना टॉपिक। डिस्टेंस फाइंड करना हो किसी भी 2 पॉइंट्स दे ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ये अपने को x एक्सिस ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ p x1 y1 q x2 y2। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਹੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੀਨਸ p q ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਹੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ x2 minus x1 square plus y2 minus y1 ਦਾ square। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ PQ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, y ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ z ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ z2 minus z1 ਦਾ होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला की हो गया ये प्लस z2 minus z1 ਦਾ होल स्क्वायर। क्लियर, यही चीज रहे जब आप करनी है कि सारी बहुत ही इजी है, थोड़ा जिहा ध्यान ਨਾਲ समझ लो। ਹੁਣ ਨਾ देखो ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ एग्जांपल लेने रहे ਆਪਾਂ डिस्टेंस किस तरह फाइंड कर देंगे p and q 2 पॉइंट अपने को। क्लियर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ PQ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ x2 x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ z2 z1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ठीक है, यही फॉर्मूला है इससे अप्लाई करेंगे। एक ही अपने को x1 है, ये वाला y1 है और ये वाला अपने को z1। सिमिलरली x2 ये वाला पॉइंट की अपने को y2 है और ये वाला पॉइंट की अपने को z2। ਆਪਾਂ डिस्टेंस फाइंड करना है pq p and q पॉइंट ਦਾ ਜੋ डिस्टेंस उसਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ pq इक्वल टू ਕੀ ਜਾਊਗਾ स्क्वायर रूट x2 x1 ਦਾ स्क्वायर x2 कितना अपने को 2 minus 2 the square plus y2 minus y1 y2 कितना 3 and y1 भी कितना अपने को 3 minus 3 the whole square plus z2 कितना अपने को 1 and z1 कितना अपने को 5 means z2 minus z1 means 1 minus 5 the square। देख रहे की बन गया अपने को 4 minus 2 the square मीन 2 स्क्वायर बन गया 3 minus 3 0 0 स्क्वायर बन गया 1 minus 5 कितना होगा -4 का स्क्वायर है। देख रहे स्क्वायर ऑफ 2 कितना आ गया 4 0 का स्क्वायर कितना 0 ही आ जाना आपके को -4 का स्क्वायर की तरह कितना होगा आपके को 16 तो मीन कितना आ गया आपके को √20। क्लियर, √20 की है इन दोनों पॉइंट्स पी एंड क्यू का डिस्टेंस आ गया आपको। क्लियर, इसमें थोड़ा होर भी आप सॉल्व कर सकते हैं मीन जिवें अपने इसमें की करना होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में बना लिया पूरे तो इससे क्या आ गया 2 10 20 2 5 10 तो इसमें की लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट
2 मल्टीप्लाई 5 तो कितना बन गया है 2 स्क्वायर रूट 5 यूनिट। क्लियर? इस तरह पर डिस्टेंस जो फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू 6,6,7। ये वाला पॉइंट देता है रे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओरिजिन तो डिस्टेंस ਦੱਸਣਾ ਰਹੇ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ओरिजिन ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲੇਨ ਹੈ x y and z। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ओरिजिन। ओरिजिन ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ and z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਰਹੇ मीन कि p पॉइंट का नाम देता अपन 6,6,7। क्लियर? अपन कहना रहे ये जो डिस्टेंस है इना वो तो लेके p तक ये डिस्टेंस अपन फाइंड करना है। क्लियर? गिवन पॉइंट्स किहड़े अपने कोल गिवन पॉइंट्स है किहड़े हैगी एक तो ओरिजिन है उसमें अपन ओदा नाम देता 0,0,0। ठीक है? एंड दूसरा की अपन को p पॉइंट रही उसमें अपन वो अपन को है 6,6,7। ये अपन डिस्टेंस फार्मूला लगा के रही OP जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है OP की निकला जाएगा x2 minus x1 means 6 minus 0 the square plus 6 minus 0 the square plus z2 minus z1 the square means 7 minus 0 the square। ये कितना बन गया अपन को 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 7 minus 0 प्लस 7 स्क्वायर तो कितना बन रही है 36 प्लस 36 प्लस 49 तो कितना बन गया 36 प्लस 36 72 प्लस 49 कितना आ गया आपको 121 तो कितना बन गया 121 का स्क्वायर रूट कितना ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 121 ਹੁੰਦੇ ਆ। देयरफॉर डिस्टेंस ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ओरिजिन टू पॉइंट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11। क्लियर? ये अपना आंसर। नेक्स्ट है अपने को थर्ड क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स -3 7 2 2 4 -1 एंड 12 -2 -7 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स की ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ मीन जी इक्वल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ कोलिनियर। मीन इसमें ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ मीन ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P Q एंड R ये पॉइंट्स की है कोलिनियर है बिकॉज इको स्ट्रेट लाइन के ऊपर की है लाई कर रहे हैं। तो इन्होंने ਆਪਾਂ किस तरह शो कर सकते रहे जेकर ਆਪਣੇ ਕੋਲ PR है जी किहदे इक्वल आ जी PQ प्लस QR। मीन जी जो सारा डिस्टेंस है वो किहदा सम आ रहे PQ प्लस QR। यही चीज है इस दे विच आपां प्रूव करांगे। आपां लेट कर लेनी है let the given points are इसमें रही अपन पी क्यू आर का नाम दे देते हैं। पी पॉइंट है अपन को -3 7 2 एंड क्यू पॉइंट है अपन को 2 4 -1। इस तरह अपन को आर पॉइंट है जो किड़ा है अपन को 12 -2 -7। आप उसी तरह रहे बाय डिस्टेंस फार्मूला इन्हें डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। आप फर्स्टली रहे पी क्यू फाइंड कर सकते कर दिए डिस्टेंस फार्मूला की सीगा x2 x1 मींस 2 -3 इधर सारे का की होंगे होल स्क्वायर प्लस y2 y1 y2 कितना आपके को 4 माइनस y1 कितना 7 का स्क्वायर प्लस z2 z1 z2 कितना आपको -1 एंड z1 कितना 2 ए स्क्वायर आ गया। ये किसके इक्वल आ गया अपने को 2 + 3 5 का स्क्वायर बन चुका है प्लस 4 - 3 मीन -3 का स्क्वायर -1 -2 मीन -3 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया देखो 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर
9 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 9 + 9 18 18 + 25 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 43। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ QR। उस तरह डिस्टेंस फार्मूले दे नाल QR हुण की अपने कोल a वाला x1 y1 z1 ये x2 y2 z2 तो की होगा z2 x1 x2 - x1 means 12 - 2 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 -2 - 4 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट है अपने को z2 - z1 प्लस z2 - z1 z1 कितना रहे अपन z1 2 कितना -7 एंड z1 कितना -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया रे। देखो ये कितना बन गया है अपन को 12 - 2 10 का स्क्वायर -2 - 4 ये कितना बन गया रे -6 का स्क्वायर -7 + 1 ये कितना बन गया अपने को -6 का स्क्वायर। दिख रहे कितना रहे अपने को 10 का स्क्वायर 100 प्लस 36 प्लस 36 तो कितना बन रहे टोटल है 172। इस तो बाद आप इधर कर लगे रहे एक ही को आ जाएगा अपने को QR की को आ गया √172 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 4 × 43 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो 4 3 are 12 1 कैरी 4 4 16 + 1 70 मीन जे 172 ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 4 × 43 4 ਦਾ ਰੇ ਸਕੁਅਰ रूट ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 43। क्लियर। जो QR है वो अपने को 2√43 आ गया। इस तो बाद अपने को की रह गया फाइंड करने का PR। नाउ PR आपको फाइंड कर दे रहे PR उसी तरह स्क्वायर रूट ये सेम ही होता अपने को आंसर RP फाइंड कर लो या PR फाइंड कर लो तो क्या होगा अपने को 12 माइनस इंटू -3 तो कितना बन गया है 12 -3 करना सी रही बट ये पहले 3 माइनस आपने बोलता कि बन गया +3 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 कितना आपने बोले -2 माइनस y1 कितना 7 प्लस z2 - z1 z2 -7 है और z1 कितना 2 देख रहे कितना बन रहा है अपने को 12 + 3 15 स्क्वायर आ गया अपने को प्लस -2 - 7 ये कितना बन गया अपने को -9 एंड सेम ये भी अपने को कितना बन गया -9 का स्क्वायर। तो देख रहे 15 15 आर 225 प्लस 9 का स्क्वायर कितना बन गया 81 प्लस ये भी कितना बन गया अपने को 81। देख रहे सारे में ऐड कर दें तो अपने को कितना बन जाएगा 225 81 81 तो कितना बन गया 7 18 387 क्लियर है। इसमें आपका की लिख सकते हैं 387 हूं इसमें रे अपन लिख सकते हैं 3 × 43 ठीक है। जेकर ये ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट नहीं पता लग रहा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ 343। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇ जो लास्ट ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ जो ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਮੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ ठीक है। किसी भी दो का सम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ पहला √43 आया फिर ਆਪਣੇ ਕੋਲ 243 आया फिर ਆਪਣੇ ਕੋਲ 343 आया। मीन जे ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ
मीन पी क्यू प्लस क्यू आर कर रहे हैं तो अपने को की बन रहा पी आर। आप लिखते रहे पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर कि आ गई 143 है वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू कितनी है 243। ये टोटल कितना बन गया ये 143 है, ये 243 है, टोटल कितना बन गया 343। तो एक किदे इक्वल है पी आर दी। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर लीनियर। इस तरह जो भी तुहानू पॉइंट्स लीनियर शो करने को कहा गया हो या चेक करने क्या हो गया हो तो तुसी इस तरह फाइंड करोगे। हाँ जी नेक्स्ट है अपने को लेट ए बी एंड सी बी एनी 3 पॉइंट्स फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। जे ਆਪਾਂ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्लेन ਦੇ ਉੱਪਰ कोई भी 3 पॉइंट है उन्होंने मिला के एक ट्रायंगल बन रही है तो आपको पूछा जाए भी किस तरह की ट्रायंगल है तो आप देखते हैं किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली होंगी रही अपने को इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है मीन क्या होगा जेकर अपन पॉइंट ए बी एंड सी दिता हुआ है तो क्या होगा ए एंड बी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू बी एंड सी पॉइंट के डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू सी ए होगा। मीन कि तीनों साइड है जी वो की होनी है इक्वल। उस तो बाद आ जाती रही अपने को आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल विच की हुंदा रहे एनी 2 साइड है जिहड़ियां वो की हुंदियां इक्वल हुंदियां। एनी 2 साइड्स of a triangle are equal। कोई भी 2 साइड हो सकती है या तो ए बी इक्वल टू बी सी देगी या ए बी इक्वल टू ए सी देगी। इस तरह कोई भी 2 साइड है जो वो इक्वल हो सकती है। क्लियर तो उस ट्रायंगल में आप बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है रही अपने को स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ all sides are different means AB not equal to BC not equal to CA। तीनों साइड है जो डिफरेंट होनी है तो उस ट्रायंगल ਨੂੰ बोलेंगे ਆਪਾਂ स्केलर ट्रायंगल। जेकर ये अपने पूछा जाता भी ये 3 पॉइंट है ਜਿਹੜੇ ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ राइट एंगल ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿयोरम ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪੋ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस बेस ਦਾ ਸਕੁਅਰ। क्लियर कोई भी इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह बनूंगी ना अपने को जेकर ये अपने को ए पॉइंट है ये बी है और ये वाला सी है। ठीक है बी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल है देन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह की ट्रायंगल की होगी रही अपने को राइट एंगल ट्रायंगल। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ट्रायंगल ਦੀ ਰਹੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फाइंड कर सकते हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ फाइंड करना ਪਿਆ ਕਰੂ ਇਹ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ AB फाइंड करना ਪਿਆ ਕਰੂ BC एंड CA मीन तीनों साइड पता करनी ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तीनों साइड ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ट्रायंगल ਦੀ। नेक्स्ट है रही आपके को लेट A B C and D be any 4 points forming a quadrilateral। ठीक है 4 पॉइंट रही प्लेन के ऊपर वो आप दसना रहे किस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे उस दे लिए की फाइंड करना पिया करूगा रही अपने को मीन जेकर आपको ये पूछा गया भी वो स्क्वायर बना रहे हैं स्क्वायर दे विच की होगा स्क्वायर दे विच की हुंदा रही ऑल साइड्स आर इक्वल all sides and diagonals are
equal, all sides and diagonal are equal। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ऑल साइड इक्वल होंदियां ते डायगोनल इक्वल होंदे उसनूं बोलदे आपां स्क्वायर। इस तरह रोम्बस की हुंदा रही, रोम्बस दे विच की हुंदा है ऑल साइड यार इक्वल होंदियां बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। क्लियर। मेन जे आपने को इस तरह एक स्क्वायर बन रहे, इस तरह एक स्क्वायर है, इसके अपन पॉइंट गिवन है ए बी सी एंड डी। तो डायगोनल किहड़े होणगे, अपने कोई ए सी डायगोनल होगा एंड बी डी डायगोनल होगा। जेकर अपने को फोर साइड इक्वल है मीन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी एंड डायगोनल इक्वल है ए सी इक्वल टू बी डी, तो आप उसको बोलेंगे स्क्वायर। बट जेकर ये डायगोनल इक्वल नहीं हैगी तो उसको बोलेंगे आप रोम्बस। क्लियर। उस तो बाद है रही अपने को रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ opposite sides are equal and diagonal also are equal। रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑल साइड ऑपोजिट साइड है जी वो इक्वल होंगी एंड जो डायगोनल है उन्होंने की लेंथ है जी वो भी इक्वल होंगी है। नेक्स्ट है अपने को पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑपोजिट साइड है जी वो तो इक्वल होंगी है बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। क्लियर। इस तरह जो भी तुहानूं 4 पॉइंट दिते है उस तो आपको पूछा है कि किहड़ी शेप बन रही है तो आप उसकी सारियां साइड फाइंड कर लिया करेंगे, डायगोनल फाइंड कर लिया करेंगे। इन्हां विचों जिहड़ी कंडीशन सैटिस्फाई कर दिया करनी है उसनूं आपां वो वाला नाम दे दिया करेंगे। जेकर ऑल साइड यार इक्वल है एंड डायगोनल भी इक्वल है तो क्या होगी स्क्वायर। जेकर ऑल साइड तो इक्वल है बट डायगोनल है जो वो नहीं इक्वल हैगी तो उसनूं बोलांगे आपां रोम्बस। एंड जेकर ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है एंड डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं तो उसमें बोलेंगे अपन रेक्टेंगल। एंड जेकर ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं आ रही तो उसमें बोलेंगे अपन पैरेललोग्राम। इस तरह रही तुसी जिस क्वेश्चन ने इस दिन रिलेटेड ट्राई कर लेने हैं तो उस तो बाद तुहानूं इस दिन नाल रिलेटेड समझ लो करवाए भी जाएंगे। सो तुसीं जिन्ना भी हो सके उन्ना अपना समझ लेना। थैंक्स।